Hello students, welcome to the online classes. As we are discussing about the carbons compound, so what we discussed in the previous classes, you need to remember those all things, because today's topic is again depending upon what you learned in your past classes, right? So if you are unable to exercise or if you are unable to practice those all things, you are never going to understand this topic which we are going to discuss today, right? So means you need to know everything about the saturated and the unsaturated hydrocarbons, so then only the topic concept will be clear for you. Okay, so we are going to discuss today one of the very important topic known as the functional group. One or two question will be fixed on this topic. You check any of your previous year paper patterns, right, or even you check any of the model papers, this question is compulsory. If this question is not, means the question paper is only not going to form. I think like that, because this is a very important question that has asked every time, not a single time also this question is missed. Okay, so that's the reason it becomes a very important topic to discuss. This topic will be for 2 marks in the annual examination, right, or even sometimes even 3 marks also. So then that topic is called as the functional groups, right? So to understand the functional groups, you have to remember the alkanes or the saturated hydrocarbons. The functional groups are only, they are mandated to the saturated only. Unsaturated hydrocarbons you keep separately, like alkenes and alkynes you keep separately. Only when you discuss about the saturated hydrocarbon, means there are the alkanes, right? Then what do you mean by the functional groups? Simple. In hydrocarbon chain, if one or more hydrogen atom is replaced by other atoms in accordance with their valencies. If in the hydrocarbon chain means that is a saturated hydrocarbon. Just take an example of, I will take an example of meth, eth, prop. It is a propane, saturated hydrocarbon. So just take an example. In this hydrocarbon chain, it is a hydrocarbon chain. In this hydrocarbon chain, if I am replacing one hydrogen or one or two hydrogen by other atoms, the hydrogen is replaced, and in spite of or instead of hydrogen, if I am going to add another atom in accordance with their valencies, they are only called as a function group. Simple. Now see that what is the valence of hydrogen? The valence of hydrogen is 1. So means I need to choose a again atom, that's valence should also be 1, or even sometimes we need to replace the 2 hydrogens also in this manner also. So means if we are replacing one hydrogen or the 2 hydrogens, 2 or more hydrogens by any other atoms in accordance with their valencies, they are called as a functional group. Simple. Means replacing of hydrogen by hydrocarbon, that is called as the functional groups, and those atoms are known as the heteroatoms, and these heteroatoms are going to define the characteristics of an given hydrocarbon, whether the given hydrocarbon is belongs to which category or which category. That's all is going to be given by the function groups only. Means if you are understanding or if you are remembering the function group, you can name any compounds or you can categorize any compounds which are replaced by 1 or 2 hydrogens. So right, so to understand this one, we need to remember one of the table is there. The table is very important. I am going to draw the table. You just follow it as usual. First one is, can I rub this one? Okay, I will rub this definition. Then take the table. Heteroatoms, right, and function group formula, functional groups, right, functional groups. Then there is a
formula of function group. Formula of functional groups. Right. So in the heteroatom cases, we need to discuss about the chloro and bromo. In the heteroatom cases, there are the two atoms are there. They are known as first Cl and Br. Cl means the chlorine, Br means the bromine. So their function group is namely chloro and bromo. Both chloro and bromo are prefixes. They are the prefix. They are not the suffix, they are the prefixes. Means the name of functional group chloro or bromo, that will become before the name of an hydrocarbon. Right. So in alkane, alkene, alkyne, we said that Ane, En and Yne, they are the suffixes. Means that will become after the name of a compound, like alkanes, right? Alkanes, right? In that one, ethane, methane, right? Or even hexane, or even in the alkene cases, methene, hexene, alkyne cases, methine, hexine. So Yne, Ane, Ene, they all will come after the name of a hydrocarbon. But in the case of the chloro-bromo, the name of chloro-bromo function group, that will be comes before the name of the hydrocarbon. That means they are the prefixes that will come before the name. Suffix means they will come after the name of the compound. Then what is the function group of this one is? The function groups are Cl and Br. Sir, why this a bond is given there? Because this bond shows that it is going to attach to the carbon, right? Simple. तो ये सिंपल है कि इसमें हेटेरोटम क्लोरोब्रोमो है, क्लोरीन ब्रोमीन है, और इसका फंक्शन ग्रुप है क्लोरोब्रोमो. क्लोरोब्रोमो दोनों भी क्या है मालूम है? ये प्रीफिक्स है, क्योंकि ये आते नाम से पहले ही आते नो, और इनका फंक्शन ग्रुप है Cl. डोंट गेट कंफ्यूज. Cl एंड Cl किसका है? क्लोरो का है. एंड Br किसका है? ब्रोमीन का है. सी पर देखो, क्लोरो का Cl है, ब्रोमो का Br है. फंक्शन ग्रुप्स. सो लेट्स डिस्कस ऑन द एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शन ग्रुप क्लोरो एंड ब्रोमो. आई विल जस्ट टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स to make you understand about the function group chloro and bromo. Let's take an example. So again, in this case, again you need to remember alkenes. That is very important, because this topic only belongs to alkanes, not alkenes and alkynes. There are saturated carbons, right? Then take the names of the alkanes. Which are the names? Methane, ethane, right? Propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Right. So you know these all things. Meth means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it is your duty to remember this alkanes names. Right. You need to remember this one, because without the alkanes we cannot understand the function group, or even we cannot form any of the carbon compounds, right? So then take the examples of the function group chloro-bromo. We said that these are the
prefixes, they will come before the names. I will take the first example as methane, right? So these are the prefixes, they should be come before the name, means the name should be chloromethane. I just take an example of, पहला मैं क्लोरीन का लेता हूं, बाद में ब्रोमो का लेता हूं, राइट? क्लोरोमीथेन मतलब नेम कब आया? अल्केन, अल्केन जो हाइड्रोकार्बन है ना उसके पहले ही आ गया, मतलब दे आर द प्रीफिक्सेस, द नेम इज क्लोरोमीथेन. तो आपको क्या पता है? क्लोरीन, राइट? क्लोरीन Cl है. तो मीथेन क्या है? यू हैव टू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मीथेन. मीथेन करो, क्लोरो को छोड़ो, आप इधर जस्ट कुछ समय के लिए छोड़ दो. मीथेन का करो, मीथ H, सो इट इज एक्चुअली मीथेन, ये मीथेन है. तो फंक्शन ग्रुप क्या बोलते हैं हमको? यू हैव टू रिप्लेस एन हाइड्रोजन बाय वन ऑफ द अदर एटम्स. अब अगर हम क्लोरोमीथेन ले रहे तो हम किससे रिप्लेस करना? एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस करना. तो सर इसमें कौन सा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना? कौन से भी करो, आपकी मर्जी, एक ही बार रिप्लेस करना और एक ही रिप्लेस करना, फिर सभी को Cl मत डालना. मतलब एक फंक्शन ग्रुप एक ही बार आता. इसका मतलब मैं क्या किया मालूम है? इधर एक हाइड्रोजन को Cl से, मतलब क्लोरीन से रिप्लेस किया, क्योंकि इसका नाम आया था क्लोरोमीथेन. तो इसी के लिए मैं मीथेन के अंदर एक हाइड्रोजन एटम को एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड एज द क्लोरोमीथेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोमीथेन. सर देन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना? हम सिंपल है, देखो C कितना है? 1 है, C लिखो. हाइड्रोजन कितना है? 3 है, लिखो CH3. Cl कितना है? 1 है, लिखो, खत्म. CH3Cl. टेक वन मोर एग्जांपल, सेकेंड क्लोरो इथेन. ईथ बोले तो 2, मीथ ईथ, क्योंकि नाम में क्लोरो आ गया तो हम क्या करना? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना क्लोरीन एटम से. एक ही करना, दो नहीं करना. देखो पूरा हाइड्रोकार्बन में एक ही एटम रिप्लेस होना, ज्यादा एटम रिप्लेस नहीं करना. तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया क्लोरोइथेन का ये, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, C कितना है? 2 है, C2H5Cl. 1 2 3 4 5 Cl, खत्म, राइट? Then we will discuss everything. Okay, don't take tension. I will show you each and everything. Then take the third, chloropropane. Propane is almost 3, meth, eth, prop, right? एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस करो पहले, H. This is a structural formula. Then what is the molecular formula? C3 1 2 3 4 5 6 7 S7Cl. अल्केन है, पूरा अल्केन ही है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को दूसरा टर्म से रिप्लेस करना. एज यूजुअल देखो, तुम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों सेम है. अगर ये क्लोरो नहीं रहता था, सिर्फ प्रोपेन रहता था, तो हम इसको क्या लिखते थे? ऐसे लिखते थे, दिस इज द प्रोपेन ओनली. यही प्रोपेन है हमारा. तो Cl भी नहीं आता, इधर आता H8 आता, सिंपल. अगर हम इस हाइड्रोजन को, मतलब कौन सा भी इतने हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दो. मैं इधर भी कर सकता हूँ Cl को रिप्लेस, मैं तो इधर भी कर सकता हूँ, कहाँ भी करो, लेकिन एक ही करना, दो नहीं करना, दो से एक से ज्यादा नहीं करना. तो ये हो गया, मतलब 8 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को हम निकाल दिया, तो बचे कितना? 7 हाइड्रोजन बचे. तो किससे निकाल दिया हम? Cl, तो खत्म. C3H7Cl. फोर्थ इज ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, राइट? ब्यूट मतलब 4, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, Cl H, राइट? तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4
राइट, डबल प्लस 2 मीन्स H9Cl, C4H9Cl. So right, now take about the chloropentane. Penta means 5, meth, eth, prop, but, pent. एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दो. कौन से भी हाइड्रोजन को करो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है, कौन से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो आप, लेकिन एक ही करना, एक से ज़्यादा नहीं करना. तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया जी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H11Cl, राइट. So now I am going to show up to penta only in all the cases. So remaining up to deca you can do chlorohexane, chloroheptane, chlorooctane, chloro-nonane, chlorodecaine. Up to deca you can represent because they are very easy to represent about the function groups. So now it is about the chloro. Then what is about the bromo? तो ब्रोमो को कैसे लिखना अब हम? जैसा क्लोरीन को लिखे वैसे ब्रोमीन को भी लिखना फंक्शन ग्रुप, राइट. सिंपल ले लो एग्जाम्पल. नाउ विल टेक द सेकेंड फंक्शन ग्रुप ब्रोमो. अब ये ब्रोमो भी क्या है मालूम है? ब्रोमो भी प्रीफिक्स ही चाहिए. क्लोरो ब्रोमो दोनों प्रीफिक्स चाहिए, मतलब ये दोनों नाम से पहले चाहते हैं हाइड्रोकार्बन में. अब अल्केन्स का नाम क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एच है ना. सो इन नाम से पहले ये दोनों का नाम आता. अगर इनो है तो इन दोनों से नाम से पहले इनका नाम आता. जैसे क्लोरोपेंटेन आ गया, अब वैसे ब्रोमोपेंटेन आता, ब्रोमोमीथेन आता, ब्रोमो इथेन आता, ब्रोमो प्रोपेन आता. मतलब अगेन दे विल बी अगेन द ब्रोमो function group, that is also the prefix that will come before the name of the hydrocarbon. That is, first we'll take example of bromomethane. Bromomethane. ये हो गए मीथेन. तो मीथेन में सर क्या करेंगे हम? एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज ब्रोमीन का फंक्शन ग्रुप क्या है? Br है. तो Br को क्या करो? एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, खत्म. तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया एज यूजुअल ऑफ द क्लोरो. C कितना? 1 है. H कितना है? 3 है. तो एक Br है, तो Br लिख लो एज यूजुअल, CH3Br. सेकेंड ब्रोमो इथेन, मीथ ईथ, HHH, Br, HH. What is the? This is the structural formula. Then what is the molecular? Molecular formula is C2H5Br. Right. Now propane. Third bromo propane. Meth, eth, prop, HHH, H, Br, HHH. कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं आप? ये मत समझो मैं इधर ही ले रहा हूं. आप ये कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं? एक ही करना, एक से ज्यादा नहीं करना, राइट. ये होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? C3H7Br. 1 2 3 C3 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 H है सर. तो एक Br है, Br खत्म. दिस हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. देन ब्रोमो ब्यूटेन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट. एक Br ले लो, कौन से हाइड्रोजन को ले लो आप? ये होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C4 है, H9 है, एक Br है, खत्म. C4H9Br.
सो नाउ ब्रोमो पेंटेन, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, एक ब्रोमीन ले लो, बाकी सभी हाइड्रोजन ले लो। खत्म। ये क्या हो गया? C5H11Br. So right, so this is about the function group known as chloro-bromo. Right, I hope you understood. Up to डेक्का you can do in these all cases. Right, आप डेक्का तक कर सकते हैं, डेक्का तक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो मतलब मैं सभी फंक्शन ग्रुप को पेंटा तक तो मिनिमम करता हूँ। राइट, पेंटा हेक्सा तक तो मैं करता हूँ, बाकी का आपका एज ए होमवर्क ले लो, सिंपल। तो आप जब आपके डेफिनेशन बुक में जब अल्केन अल्केन अल्काइन होने दो, न फंक्शन ग्रुप होने दो, या क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होने दो, कौन से भी होने दो, मुझे अप टू डेक्का तक चाहिए कंप्लीट। रिमेंबर दिस केस, मुझे डेक्का तक चाहिए। सर जितना आप क्लास में बोले उतना कंप्लीट किया, ऐसे नहीं चलेगा। मैं पेंटा तक दिखा रहा हूँ इधर आपको, आप एज अ होमवर्क अभी 5 करना। डेक्का बोले तो पेंटा ऑलरेडी हो गया, 5 हो गए, तो डेक्का अभी 5 आप करना खुद। सेम मेथड तो ये है, सिर्फ एक एक कार्बन ज्यादा होता और हाइड्रोजन ज्यादा होता है, सिंपल। राइट, सो अल्केन ही आता है इसमें, अल्केन अल्काइन नहीं आते, वो बहुत ही इजी है टू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स। राइट, सो वी कंप्लीटेड द फर्स्ट फंक्शन ग्रुप known as the chloro-bromo. So now we'll move towards the second function group or the second heteroatom. ये इजी था। फंक्शन ग्रुप्स में सबसे इजी है दो नीचे, कौन से? क्लोरो ब्रोमो। अभी एक है इजी, मैं दिखाता हूं बाद में। अब देखो सेकेंड हेटेरोटम है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हेटेरोटम है, ये सेकेंड है। ऑक्सीजन हेटेरोटम में टोटल 4 फंक्शन ग्रुप्स आते। ऑक्सीजन में कितना फंक्शन ग्रुप आते? 4 आते। तो 4 को क्या करेंगे हम? एक एक करके करेंगे। एट ए टाइम किए तो नहीं समझ में आता आपको, सिंपल। तो फर्स्ट है इसमें अल्कोहल। ऑक्सीजन में 4 फंक्शन ग्रुप है, उस 4 में से फर्स्ट फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहल है ना, ये फंक्शन ग्रुप, इसका ओएल, राइट, ओएल ये क्या है मालूम है? ये है सफिक्स। मतलब ये जो ऑल है ना, ऑल अल्कोहल, ये जो ऑल है ना, ये ऑल हर एक अल्केन्स में हर एक हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे आता करते। कैसा? बिकॉज दे आर द सफिक्स नॉट द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोले तो पहले चलते, जैसे क्लोरोब्रोमो आ गए, बोलो तो वो कहते हैं मालूम है, नाम से पहले चाह रहे थे उन्होंने, बट ये क्या करते हैं मालूम है? नाम के बाद आते। कैसे? देखो, मिथेनॉल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, राइट, नॉनानॉल, डेकेनॉल। अगर एक हाइड्रोकार्बन विच इज अल्केन, अगर अल्केन से समझो, अगर उन अल्केन के नेम्स ओएल से एंड हो रहे, अगर किसी अल्केन का नाम ओएल से एंड हो रहा, इसका मतलब है वो कौन सा फंक्शन ग्रुप है? वो है अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है। वो क्या है? अल्कोहल है, सिंपल। जैसे ही आप नाम के आगे ओएल देखे समझो तो समझ लेना ये है अल्कोहल। तो अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या है? अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है OH। ओएल सफिक्स है, फंक्शन ग्रुप OH है। ये दो नाम याद रखना, खत्म। ओएल सफिक्स है और OH फंक्शन ग्रुप है। अब सिंपल देखो, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग नाउ। तो फर्स्ट ले लो मीथेन, राइट। अगर ये OL से एंड हुआ तो अल्कोहल होता है। मिथेनॉल मतलब
it is a hydrocarbon ends with OL as a suffix known as the alcohol. तो अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या है? OH है। ये आप याद रखना, ये सभी ट्रिक आप याद रखना चाहिए। जैसे OL आया ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या है? OH है, ये याद रखना आप। ये कोई भी नहीं बोलता आपको, ये याद रखने का चीज है। तो मिथेनॉल, अगेन मीथेन को लिखो, ये मीथेन है और अगेन इस मीथेन में एक हाइड्रोजन को हम फंक्शन ग्रुप OH से रिप्लेस कर दिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल बिकॉज OH इज द अल्कोहल ग्रुप। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर इसका? C1 है तो C लिखो, हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन 3 लिखो, OH 1 है तो OH लिखो, खत्म। CH3OH। सेकेंड एग्जाम्पल, इथेनॉल, मीथ, ईथ, एक OH ले लो, H H H H H, खत्म। ये होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका? C2H5OH, इथेनॉल। थर्ड, प्रोपेनॉल, मीथ, ईथ, प्रोप, 1 OH ग्रुप, H H H H H H H। सर ये OH इधर ही क्यों ले रहे हैं? आप कहाँ भी ले सकते हैं ना, हाँ कहाँ भी ले सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? इधर लो, इधर लो, इधर लो, लेकिन एक ही लेना, एक से ज्यादा नहीं लेना। कौन सा भी फंक्शन ग्रुप एक ही लेना, एक ही बार लेना, एक से ज्यादा बार नहीं लेना। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? C3H7OH, प्रोपेनॉल, राइट। Then butanol, OL is alcohol group, meth, eth, prop, but, one should be OH group, remaining all should be hydrogen group, H H H H H H H H। ये होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है मालूम है? ये है C4H11OH, खत्म। Sorry, C4H9OH। Then fifth is pentanol, meth, eth, prop, but, pent। एक OH ग्रुप आना कंपलसरी। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H11OH, खत्म, राइट। हेक्सेन कर सकते हैं, हेक्सेनॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, नॉनेनॉल, डेक्का तक कर सकते हैं आप, राइट। लेकिन ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बोलूंगा, पेंटा तक ही बोलूंगा मैं। सो इजी है ना अल्कोहल भी, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल, ये तीनों बहुत इजी है इसी के लिए। अब बाकी जो तीन आ रहे ना वो जरा टफ नहीं है, जरा सोचने की चीज है, राइट। सो दिस मच इज एनफ फॉर टुडे क्लास, राइट। टुमारो विल डिस्कस अबाउट द 3, दे आर नॉट टफ, टफ बोल के नहीं बोल रहा मैं, ये तीनों बहुत इजी थे। कौन से? क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल, तीनों बहुत इजी थे। लेकिन जो अब जो रिमेनिंग 3 फंक्शन ग्रुप है ना वो थोड़ा ट्रिकी है। उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना भी ट्रिकी है और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना भी ट्रिकी है, क्योंकि उधर आपको थोड़ा बहुत चीज रिमेंबर करना पड़ता। हर एक कार्बन को और कहां भी एक कार्बन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उधर एक फिक्स रूल है कहां का हम रिप्लेस करना। कौन से भी कार्बन को कुछ भी नहीं लिखना रहता। ये तीनों 6 जो हमको बहुत ही इजी से हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो बाद में जो 3 फंक्शन ग्रुप आ रहे ना वो जरा सा माइंड खेल है। टफ नहीं बोल रहा मैं, दे आर नॉट टफ, दे आर वेरी 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 इजी, इनसे भी ज्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। देखो इतना ही, इनसे भी ज्यादा इजी है मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, वो ट्रिक को पकड़ना आप खत्म। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास. Again I will be back with the next video, so stay home, stay focused, meet in a next video. Bye bye.